देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 8th chapter 39th verse. Chapter name is Prayers by Queen Kunti and Parikshit saved. नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितये। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O Gadadhar Krishna, our kingdom is now being marked by the impression of your feet, and therefore it appears beautiful. But when you leave, it will no longer be so. Purport. There are certain particular marks on the feet of the Lord which distinguish the Lord from others. The marks of a flag, thunderbolt, an instrument to drive an elephant, umbrella, lotus, disc, etc., are on the bottom of the Lord's feet. These marks are impressed upon the soft dust of the land where the Lord traverses. The land of Hastinapur was thus marked while Lord Sri Krishna was there with the Pandavas, and the kingdom of the Pandavas thus flourished by such auspicious signs. Kunti Devi pointed out these distinguished features and was afraid of ill luck in the absence of the Lord. तो कुंती महारानी यहाँ पर एक्चुअली कुंती महारानी का अभी अभी प्रार्थनाएं चल रही हैं। तो वो कह रही हैं कि उनके पद चिन्ह जो भगवान के पद चिन्ह उनकी राजधानी हस्तिनापुर पर पड़े, उससे वहां पर सभी प्रकार के जो ऑस्पिशियसनेस कहते हैं ना, सभी प्रकार की शुभता वहां पर आ गई, सभी प्रकार की पावनता पवित्रता उस धरती पर आ गई थी। तो भगवान के चरण जहां भी पड़ते, भगवान के चरणों की खास बात है कि भगवान के चरण में कुछ चिन्ह बने हुए हैं, जैसे कि एक एक ध्वज का और एक थंडर बोल्ट, मतलब जो थंडर बोल्ट जो बिजली जो कड़कती है आसमान में, उस उसका जैसा एक निशान है। और अ, इसको चलाने का, हाथी को चलाने के लिए एक महावत एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, उसका भी निशान है। उसको क्या कहते हैं, किसी को पता है? वो हिंदी में कुछ कहते हैं, संस्कृत में उसका कुछ नाम है। अंकुश, अंकुश कहते हैं। तो उसका अंकुश भी है, छाता है। उनके चरण में कमल बने हुए हैं, चक्र है। तो इस प्रकार से अनेक चिन्ह है। चिंता प्रभु ने एक पूरी क्लास दी थी जिसमें भगवान कृष्ण के चरणों के चिन्ह के ऊपर उन्होंने पूरी क्लास दी थी कि एक एक चिन्ह क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वो चिन्ह जब भगवान किसी भी धरती पर रखते हैं तो वो धरती अपने आप ही पावन बन जाती है, क्योंकि भगवान सबसे पावन है। सारी पावनता के स्रोत ही भगवान है। और जब भगवान इस प्रकार से हमारे हृदय में विराजमान होंगे तो हमारा हृदय भी पावन बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के चरणों के प्रति हमें बहुत प्रेम होना चाहिए। भगवान के दर्शन भी जब लेते हैं, पिछले इसी चैप्टर में श्लोक में आया था कि भगवान के दर्शन लेने का तरीका भी है, पहले उनके चरणों के दर्शन लिए जाते हैं, फिर एक एक करके ऊपर जाया जाता है, फिर लास्ट में उनके चेहरे के दर्शन लिए जाते हैं। तो कुंती देवी को डर है कि भगवान चले गए तो वो पावनता जो शुभता उनकी राजधानी में है वो सब चली जाएगी। यस। सम प्रभु, यू वांट टू रीड? Yes, bro. इन्हें जना पद श्रद्धा प्रकर्षति विरुद्धा बन्धीर्नादि ध्रुवन्तो अयिनांस तबे विख्यातः. All these cities and villages are flourishing in all re- respects because the herbs and grains are in abundance. The trees are full of fruits, the rivers are flowing, the hills are full of minerals, and the oceans full of wealth. And this is all due to your glancing over them.
Human prosperity flourishes by natural gift and not by gigantic industrial enterprises. The gigantic industrial enterprises are products of a goddess civilization, and they cause the destruction of the noble aims of a human life. The more we go on increasing such troublesome industries to squeeze out the vital energy of the human being, the more there will be unrest and dissatisfaction of the people in general, although a few only can live lavishly by exploitation. The natural gifts such as grains and vegetables, fruits, rivers, the hill of jewels and minerals, and the seas full of pearls are supplied by the order of Supreme. And as he desires material, nature produces them in abundance or restrict them at times. The natural law is that the human being may take advantage of these godly gifts by nature and satisfactorily flourish on them without being captivated by the exploitative motive of lording it over material nature. The more we attempt to exploit material nature according to our whims of enjoyment, the more we shall become entrapped by the reaction of such exploitative attempts. If we have sufficient grains, fruits, vegetables, and herbs, then what is the necessity of running a slaughterhouse and killing poor animals? A man need not kill an animal if he has sufficient grains and vegetables to eat. The flow of a river waters fertilizes the field, and there is more than what we need. Minerals are producing in the hills and the jewels in the ocean. If the human civilization has sufficient grains, minerals, jewels, water, milk, etc., then why should it hanker after terrible industrial enterprises at the cost of the labor of some unfortunate man? But all these natural gifts are dependent on the mercy of Lord. What we need, therefore, is to be obedient to the law of the Lord and achieve the perfection of human life by devotional service. The indication by Kunti Devi are just to the point. She desires that God's mercy be bestowed upon them so that natural prosperity be maintained by His grace. हरे कृष्णा। सो यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में साफ साफ स्पष्ट किया है कि वास्तव में जो हम प्रगति उन्नति जो कहते हैं उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ ये नहीं है कि बड़े बड़े कसाई खाने बनाए जाएं और बेचारे जानवरों को, जो निर्दोष हैं, जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, जो कमजोर हैं, उनको उठा के काटा जाए बैठ के। तो जो मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, वो कॉन्सेप्ट अभी है। आप वर्तमान सरकारें भी देखेंगे तो उनके अनुसार जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी उतना ज्यादा खुशी होगी, उतना ज्यादा प्रसन्नता फैलेगी, उतना ज्यादा लोग सुखी रहेंगे। बट वास्तव में ऐसा हो रहा है क्या?
ये सब हमें सोचने की जरूरत है कि वास्तव में सही में ऐसा हो रहा है कि या लोग और ज्यादा वायलेंट होते जा रहे हैं, लोग मेंटली डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, लोग जो है किस प्रकार से एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, चोरी, मर्डर, क्राइम्स। आप देखिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने इतनी प्रोग्रेस कर ली, इतनी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कर ली, उतना धन है उनके पास, लेकिन फिर भी क्राइम जो है, क्राइम रेट ऑफ क्राइम बहुत है यूएस में। एंड जितनी जेल्स पूरे यूएस में है उतनी कहीं नहीं है एक्चुअली, सबसे ज्यादा जेल्स हैं। तो वास्तव में सुख समृद्धि जो कहा जाता है, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का मतलब ये नहीं है कि कारखाने स्थापित कर दिए, क्योंकि आप जितना भी कोशिश करेंगे इन कारखानों के द्वारा आप भौतिक चीजें उत्पन्न करेंगे ताकि आप अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर सकें। और वास्तव में क्या होगा, जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगेगा उतना ही स्वार्थी बनता जाएगा। और विशेष रूप से ये औद्योगिक कारखाने वगैरह खुल के कुछ विशेष व्यक्तियों तक ही सारा धन पहुंचा दे रहे हैं। तो जो जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। तो हम लोग गधों की तरह काम कर रहे हैं अपने ऑफिसेज में, तो हम अमीर हो रहे हैं क्या? हम तो उतना कुछ अमीर नहीं हो रहे। जो वास्तव धन, जो वास्तविक धन मिल रहा है वो उस कंपनी का जो टॉप सीईओ है, जो बॉस है, जो जिसने कंपनी बनाई है, वो वास्तविक रूप से अमीर होता जा रहा है। तो हम तो शूद्र की तरह कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण आश्रम की स्थापना की गई भगवान ने की, उसमें ये चार वर्णों में से शूद्र वर्ण में ही हम लोग सब जीवन जी रहे हैं। हम लोग चाहे कितना भी पढ़ाई की हो, पर हम दूसरे के फेंके हुए पैसों पर निर्भर रहते हैं, हम उनकी सेवा करने में लगे रहते हैं। दिस इज आवर फेट, ये हमारा भाग्य है। क्योंकि कलयुग शूद्र, कलौ शूद्र संभव है, कलयुग में केवल शूद्र ही संभव है, शूद्र ही पैदा होते हैं। तो वी आर ऑल्सो बोर्न एक्चुअली शूद्रस, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स। एंड एटलीस्ट जो अपने लिए स्वयं कार्य कर रहा है, छोटी सी दुकान खोल के भी कार्य कर रहा है, वो स्वयं अपने लिए कार्य कर रहा है। वो तो किसी और के लिए कार्य नहीं कर रहा। वो धन कमा रहा है वो अपने लिए कमा रहा है डायरेक्ट। हम क्या है, दूसरे के लिए कमा रहे हैं, वो हमारे हमारे ऊपर सैलरी दे रहा है हमको। यू टेक दिस सैलरी एंड बी हैप्पी एंड वर्क लाइक एन एस, लाइक ए डोंकी, डे नाइट, सुबह सुबह 8 से रात के 9 बजे तक हम जो है इतना काम कर रहे हैं। तो वास्तव में देखा है किस कॉस्ट पे कर रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य जा रहा है, हमारा परिवार का समय चला जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के आध्यात्मिक सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना हमें काम करवाया जा रहा है। बट वास्तव में जो समृद्धि है शास्त्रों के अनुसार क्या है, कि जितने भगवान ने ऑलरेडी इस प्रकृति में इतने रिसोर्सेस हमें प्रदान किए हैं, कि आप केवल उनके माध्यम से भी आप अपना जीवन सुख से जी सकते हैं। एंड वास्तव में सुख इन इन भौतिक संसाधनों में नहीं है। जितना भौतिक संसाधनों में फंसेंगे उतना ही आप असंतुष्ट रहेंगे मन में, क्योंकि एक संसाधन, एक कार आती है, उसके बाद एक नया वर्जन आ जाता है, उसके बाद एक नया वर्जन, iPhone 16, iPhone 17, iPhone 18, एक एक करके उनका काम है किसी भी प्रकार से लोगों को अपना सामान बेचना। तो वो हर बार कुछ ना कुछ थोड़ा, एक बार एक कैमरा कैमरा तीन इधर लगाए, उसके बाद दूसरी साइड साइड में लगा दिए, फिर दूसरी साइड में लगा दिए। तो इस प्रकार से वो केवल कैमरे की पोजीशन चेंज कर करके आपको ये बताते हैं कि आप कितना पीछे रह जाएंगे अगर ये कैमरा, ये मोबाइल नहीं खरीदेंगे। तो वास्तव में जो समृद्धि है, जो नेचुरल गिफ्ट्स हैं, जैसे भगवान ने अन्न दिए हैं, सब्जियां दी हैं, फल दिए हैं, नदियां हैं, और बहुत सारे रत्न दिए हैं, ये सभी अब पहले से ही इस संसार में भगवान ने दे रखे हैं। हम लालच के, मनुष्य जो है लालच के कारण वह सब अपने लिए इकट्ठा करना चाहता है, और इसी कारण केवल एक अपने लिए, किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। और इसी वजह से क्या है कि मनुष्य दुखी है, क्योंकि जो स्वार्थी हम जब बन जाते हैं तो हम दुखी होने लगते हैं। क्योंकि सब कुछ जो भी है हमारे सामने, हम चाहते हैं कि हमारे भोग के लिए बने, हमारे भोग के लिए रहे। और जब आप इस प्रकार से सोचेंगे कि सब कुछ मेरे भोग के लिए हो, तो आप चाहेंगे दूसरे के लिए कुछ ना हो। एंड जितना आप इस मेंटेलिटी में आएंगे सामने वाला भी चाहेगा। तो इस प्रकार से समाज में बहुत ज्यादा वॉयलेंस, हेट्रेड, एनवी, जेलसी, ये सब बढ़ती जा रही है। तो भगवान, कुंती महारानी कह रही है कि भगवान आपके चरण चिन्ह यहाँ से चले जाएंगे तो समृद्धि चली जाएगी। तो समृद्धि, वास्तव में समृद्धि है
जो एक गृहस्थ होने के नाते हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें अपने परिवार का भरण पोषण करना है। तो हमारे लिए समृद्धि का वास्तविक अर्थ है कि परिवार के बीच में सुख हो, और परिवार के लिए जो सफिशिएंट है उतना हमें मिले, एंड हमारी स्पिरिचुअल लाइफ अफेक्ट ना हो। अगर कोई भी चीज, कोई भी आपका एंडेवर, आपका प्रयास, आपका जॉब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, आपकी फैमिली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तो वास्तव में वो करने योग्य नहीं है, वो कार्य करने योग्य नहीं है। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपना समय बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत बुद्धिमत्ता से हमें सही कार्यों में लगाना चाहिए। तो आप जितना हो सके समय दीजिए, अपने परिवार को दीजिए और आध्यात्मिक जीवन को दीजिए। जैसे ओवर एंडिएवर जो कहते हैं ना, अति प्रयास, अति, हर, जब प्रयास बहुत ज्यादा करने लगते हैं भौतिक चीजों के लिए, भौतिक जॉब के लिए, भौतिक संसाधनों के लिए, और उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती अगर, तो वो अति प्रयास की श्रेणी में आ जाता है। वो जो है अति प्रयास वास्तव में किए जाने योग्य नहीं है। वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को खत्म कर रहा है, आत्मा आध्यात्मिक उन्नति नहीं करने दे रहा है। उतने अति प्रयास की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो वी शुड ऑल्सो ट्राई टू take some job or take some uh, profession where we can give sufficient time to Krishna, एटलीस्ट। जो हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य बताते हैं कि एक कम से कम 16 माला कीजिए, करना है, कम से कम भागवतम का डेली हमें श्रवण करना है। ये कुछ समय प्रतिदिन हमें पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवतम, और हमें 16 माला का जाप करना चाहिए। तो ये हम अगर कर पाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, समृद्धि के का भी कोई मतलब है। इस समृद्धि का अदरवाइज कोई उद्देश्य नहीं है। समृद्धि हमें हमारे जीवन में और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ही लेकर आएगी। जितना आप सोचेंगे भौतिक समृद्धि हम हमें खुशी देगी, उसके स्थान पर भौतिक समृद्धि परिवार में कलह लेकर आएगी। और ये भौतिक समृद्धि बिना भगवान के अगर होती है तो वास्तव में वो केवल कलह लेकर आती है। और भगवान अगर केंद्र होते हैं तो सभी प्रकार के सुख लेकर आती है। So we should also try as devotees that we should see that our spiritual progress should not stop. Our spiritual hankering should not stop. And we should give sufficient time to Krishna and sufficient time to family. तो हम लोग का सूत्र है, हमें जो हमारे गुरु वर्गों ने बताया है, कि मॉर्निंग फॉर कृष्णा एंड देन रेस्ट होल डे शुड बी फॉर आवर फैमिली एंड जॉब बोथ। तो हमें इस प्रकार से कार्य करना है। एंड सैटरडे संडे है, जैसे सैटरडे है तो हमें मंदिर जाना चाहिए अपना। शनिवार को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, या जिस दिन छुट्टी है आपकी वो एक दिन आपको भगवान की सेवा में करना चाहिए। कुछ जगह जैसे कुछ लोगों की 2 दिन छुट्टी है, तो एक दिन भगवान के, एक दिन मंदिर जाइए, एक दिन भगवान की सेवा कीजिए, एक दिन फैमिली के लिए रखिए। इस टाइप से कीजिए। एंड अगर एक ही दिन छुट्टी है तो उसको हाफ हाफ डिवाइड कीजिए, कि भगवान की सेवा भी करनी है और फैमिली के लिए भी कुछ कार्य करना है, तो वो दोनों वो भी करना है। तो इस प्रकार से हमें प्लान करना चाहिए, क्योंकि आज का जीवन अदरवाइज इज इट्स रनिंग, एंड यू आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग हैप्पीनेस। You are working Yes, hard for happiness, but still you are not getting happiness. Why? Because happiness is not in that money. Happiness is in the relationships. Happiness is when you can give time to your family. Happiness is when you can give time to Krishna. And if you please Krishna, yasmin tushte jagat tushtam. If you can make Krishna happy, then automatically everybody will be happy. So we should take guidance. That's why Srinath Prabhu and other devotees, senior devotees are there. We can take guidance, how to plan my day, how to plan my life so that I can give sufficient time to Krishna and family both, and my job also. So that balance has to be established under the guidance. Because ये generic हो सकता है सबके लिए, generic ना हो. Some people have to adjust here and there. So we have to talk to Guru, and then we should see how we can manage our time. Okay, so then we can chant peacefully. If you are not able to chant peacefully, if you have anxiety while chanting Hare Krishna, then that means you are doing over endeavor, अति प्रयास। एंजाइटी है कि ये चल रहा है दिमाग में, ये करना है, वो करना है, शांति से भगवान का नाम लेना है। तो then we can when we can chant actually peacefully, then you will feel satisfaction also। आपका अगर सुबह चैंटिंग अच्छी हो जाती है
तो फिर आपका दिन भी अच्छा होता है। आप देखेंगे, इफ यू हैव चैंटेड वेरी नाइसली, देन होल डे विल बी वेरी ऑस्पिशियस। समृद्धि भी, प्रॉस्पेरिटी जो हार्ट में है वो भी मिलेगी। So let's invite Krishna in our hearts and chant attentively Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।